Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students and viewers. Welcome to lecture number 12 of the course Mobile Ad Hoc Network. Before going to start today's lecture, I'm going to give a short overview of what we have studied in the last lecture. In previous week, we talked about the data link layer. As you know, the data link layer is the second layer of the OSI model or the TCP model, and it is considered to be one of the most complicated layers because it has many complex functionalities and responsibilities. Actually, the data link layer hides the details of the underlying hardware and represent itself to the upper layers as a medium to communicate. Similarly, we elaborate some of the components like the nodes and the links that play important role in the data link layer. Data link layer can be divided into two sublayers. The first sublayer is called the data link control sublayer, while the second layer is called the medium access control sublayer, or MAC layer in short. We discuss some of the services that are provided by the data link layer. For example, framing is a basic service, flow control, error control, congestion control, access control and coordinate access to the shared medium, and reliable delivery. After that, we discuss the MAC layer for mobile ad hoc network. As mobile ad hoc network has several unique characteristics that distinguish it from other wired and wireless networks, so the solutions that we have developed or we are going to develop for the MAC layer, they must need special consideration. Similarly, the performance measure for the MAC layer protocols like the throughput and delay, fairness, energy efficiency, multimedia support, and other performance measures, we had a look on them. Also, we discussed the issues that we need to consider while designing any MAC layer solution for the mobile ad hoc network. Some of the issues that we already discussed were bandwidth efficiency, quality of service support, synchronization, hidden and exposed node problems, error, prone shared broadcast channel, and distributed nature. Beside, we saw mobility of the node, an important consideration while designing protocols for the mobile ad hoc network MAC layer. Also, we saw some design goals that we need to keep while designing a solution for the MAC layer. We also discuss the classification of mobile ad hoc network MAC layer protocols. We discuss 4 categories of protocols, and the categories that we saw are contention-based protocol with reservation mechanism, and then with the scheduling mechanism, and finally the 4th category is the other MAC layer protocols. The contention-based protocol are further subdivided into 2 categories: the sender-initiated protocol and the receiver-initiated protocols. And then we already saw that the sender-initiated protocol can be further subdivided into 2 subcategories, and they are the single-channel protocol and the multi-channel protocols. Similarly, the contention-based protocol with reservation mechanism can also be divided into 2 subcategories, and those categories are synchronous, while the second category is asynchronous protocols. So we discuss all these categories in details, and also we saw some of the examples. The first protocol that we discussed in details in the previous week was multiple access collision avoidance protocol, or MACA in short. So MACA को हमने लास्ट वीक डिटेल से डिस्कस किया था,
और उसके बारे में जो की पॉइंट्स है वो मैं जल्दी से रिवाइज कर लूँ, क्योंकि जो हमारा आज का प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं माका डब्ल्यू, दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन माका प्रोटोकॉल. So I think it's important to revise the concepts of the Maka protocol. Actually जो Maka protocol है, it uses RTS and CTS packets. These two are small packets, control packets, special purpose packets that the Maka uses for signaling purposes. RTS stand for request to send, while the CTS stand for clear to send. So when a node in Maka wants to transmit a data packet, first it need to transmit the RTS packet, and then the receiver node, on receiving the RTS packet, if it is ready to receive the data, it will transmit the CTS, clear to send packet. And once the sender receives the CTS packet without any error, without any problem, then it will start transmitting the data packet. So before the actual transmission happens between the sender and the receiver, they need to exchange the special purpose control packets, and they are called the RTS and CTS packets. The use of RTS and CTS mechanism actually handle the hidden node problem and the exposed node problem that are very famous phenomena in the wireless communication. But still, as we saw, we cannot completely solve the problem of hidden node problem, hidden node terminal problem, hidden node or terminal problem, and exposed node or terminal problem. It still happen in the Maka. Sometime the control packet will collide with another control packet, while sometime the data will collide with another control packet. So collision is possible still in the Maka protocol. So our second protocol of for the make layer is called the Macau, and it is the same like multiple access with collision avoidance, but W stands for wireless. It is actually a slotted make protocol, and it is widely used in mobile ad hoc network. It is a classical protocol, but still it is very much in the mobile ad hoc network. The protocol itself is based on the Maka protocol, but further it is a foundation for many other make protocol in used in WSN. माका खुद जो है वो पॉपुलर प्रोटोकॉल है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है RTS एंड CTS उसको अडॉप्ट किया गया है इन अदर वायरलेस प्रोटोकॉल, नॉट ओनली इन फॉर एग्जांपल इन वायरलेस लेन बट आल्सो इन WSN. सो माका के पे बेस करते हुए माका W प्रोटोकॉल है, और इस पे बेस करते हुए वी आल्सो हैव डेवलप्ड सम अदर protocols, some other protocols for example for WSN etc. एक्चुअली जो जिस तरह मैंने बताया था कि जो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल्स हैं like the RTS, like the IEEE 802.11a BGN, उनमें जो RTS CTS का मैकेनिज्म यूज़ होता है दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड, या उसका जो आइडिया है वो इस माका और माका W प्रोटोकॉल से ही लिया गया है. ठीक है, सो that thing is common in Maka and Maka W, RTS and CTS packets. However, in this protocol we are going to use another control packet जिसको हम कहते हैं acknowledgement packet, or in short ACK packet, right? So beside from using the CTS and RTS packets, we will be using another packet that is called acknowledgement packet. Here we have a question कि जब RTS और CTS मैकेनिज्म हिडन नोड और एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है, देन व्हाई वी नीड
another packet acknowledgement. ठीक है? So the need for using this additional acknowledgement packet arises because of the following reasons. वो reasons क्या हैं? Let me share. Maka protocol में the responsibility of recovering from transmission error lies with the transport layer. ठीक है? अगर कोई पैकेट किसी एरर की वजह से उसमें कोई मसला आ जाए, सो रीट्रांसमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी माका में किसकी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की है. एंड दैट इज लाइक नॉट एन एफिशिएंट सोल्यूशन. सो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए माका डब्ल्यू प्रोटोकॉल में जो एरर से रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने डेटा लिंक लेयर के ऊपर डाल दी है. राइट? इन दिस केस अगर कोई पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो जाए एट द रिसीवर एंड, तो रिसीवर नोड क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट पैकेट को सेंड करेगा. राइट? जिस तरह टीसीपी के केस में हमने देखा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुली रिसीव पैकेट्स. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर सेंडर है और उसको ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट ना मिले, तो वो क्या करेगा? इट विल रीस्केड्यूल द सेम पैकेट फॉर ट्रांसमिशन. और ट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन के लिए बैक ऑफ काउंटर एक वेरिएबल होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो कि बिफोर आफ्टर ट्रांसमिटिंग द फर्स्ट पैकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब जैसे ही वो ट्रांसमिट करता है, अगर दोबारा उसको रीट्रांसमिट करना पड़े तो जो बैक ऑफ काउंटर है उसको वो इंक्रीमेंट करता है इफ़ द एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट रिसीव बाय द सेंडर. लेकिन जिस तरह डेटा लॉस हो सकता है, इसी तरह एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकती है. So if the acknowledgement packet get lost in transmission, the sender would retry by transmitting in a request to send for the same packet. Okay. In Maka protocol, exposed node problem को handle किया गया है with the help of RTS and CTS. If you remember, एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म क्या है कि एक एक्सपोज नोड विच इज़ द नेबर ऑफ द सेंडर नोड दैट इज़ फ्री टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली व्हेन द सोर्स नोड इज़ ट्रांसमिटिंग पैकेट्स. यानी ज़रूरी नहीं. एक्सपोज नोड प्रॉब्लम क्या होता है कि एक नोड को आप ट्रांसमिशन से रोक रहे हैं क्योंकि उसका नेबर हुड में जो नोड है वो आइदर ट्रांसमिट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माका प्रोटोकॉल में क्या मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट किया गया था कि इवन अगर आपका जो नेबर सेंडर है अगर वो ट्रांसमिट कर रहा है, स्टिल यू आर फ्री टू ट्रांसमिट एंड स्टिल कोलिजन विल नॉट हैपन. ठीक है? किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, let us consider the following scenario. Here we have 4 nodes, S1, S2, R1 and R2. S1 जो है वो S stand for sender, R stand for receiver. So S1 is transmitting to R1 while S2 is transmitting to R2. So लेट अस कंसिडर के S1 और R1 के दरमियान ट्रांसमिशन हो रही है. ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन बिटवीन S1 एंड R1, S2 is free to transmit to R2. Why? Because the requests to send transmission by S2 are of no use, is it can proceed further only if it can receive a clear to send from R2. But this is not possible. Is the clear to send packet from R2 get collide at node S2 with packet
transmitted by node S1. So in this case जो बैक ऑफ काउंटर है एट नोड S2, इट विल बिल्ड अननेसेसरी. अगर आप इस नोड को रोके तो इसका नुकसान क्या होगा कि इट विल बिल्ड अननेसेसरी द काउंटर वेरिएबल, द बैक ऑफ काउंटर वेरिएबल. सो जो एक्सपोज नोड है इट विल नॉट बी अलाउड टू ट्रांसमिट, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है, कि ऑल दो इन दोनों के ट्रांसमिशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे इफ़ दे आर अकरिंग एट द सेम टाइम, बट स्टिल अगर आप इसको बाउंड कर रहे हैं कि वेट करें फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा टू R2 अनटिल S1 जो है वो अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट कर ले, सो दिस इज़ नॉट फेयर. ठीक है, एंड दिस इज एन एक्सपोज नोड प्रॉब्लम. यही है कि ऑल दो उनकी ट्रांसमिशन का दूसरे की ट्रांसमिशन के पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल आप उसको ट्रांसमिट करने से रोक रहे हैं. सो माका में ये प्रॉब्लम था, बट माका डब्ल्यू में इस प्रॉब्लम को हम जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो सेकेंड सिनारियो को देखें. इज एन एक्सपोज्ड नोड, सिंस एक्सपोज नोड प्रॉब्लम में क्या होता है कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट टू सेंड जो कि सेंडर है, जो सेंड करता है उसको तो वो हेयर कर सकता है, लेकिन CTS जो कि रिसीवर सेंड करता है उसको वो सेंस नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसकी ट्रांसमिशन रेंज में नहीं होता. तो एक्सपोज नोड के केस में जो सेंडर है उसको पता नहीं होता कि जो RTS CTS एक्सचेंज है वो सक्सेसफुल है या नहीं है. तो इसी प्रॉब्लम को माका डब्ल्यू में जो है वो एड्रेस किया गया है बाय यूजिंग अनदर स्मॉल कंट्रोल पैकेट जिसको हम कहते हैं DS पैकेट, डेटा सेंडिंग पैकेट. राइट, एक्चुअली माका डब्ल्यू में होता क्या है, एक्चुअल डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले जो सोर्स नोड है it will transmit the special packet DS which is for data sending. ये जो DS पैकेट है इसमें इंफॉर्मेशन होती है about the duration of the transmission, कि ये पैकेट ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगेगा, और इसी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज नोड जो है वो यूज़ करता है for updating the information they hold regarding the duration of the data packet transmission. So an expose node जो कि ओवर हेयर करता है द DS पैकेट को, डेटा सेंडिंग पैकेट को, वो समझ जाता है कि जो प्रीवियस RTS CTS एक्सचेंज था इट वाज सक्सेसफुल. सो अगर वो सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है कि बोथ द नोड्स आर ट्रांसमिटिंग डेटा. सो उस केस में एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को डेटा ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए, करेगा तो वो कोलिजन होगी. सो जो एक्सपोज नोड है वो क्या करेगा, अपनी ट्रांसमिशन को डिफर करेगा. कब तक डिफर करेगा, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पैकेट ट्रांसमिशन. जब तक वो दोनों ट्रांसमिशन कर रहे हैं ये अपनी ट्रांसमिशन को डिफर करेगा फॉर द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन. ठीक है, ऑफ द डेटा एक्नॉलेजमेंट एक्सचेंज. अगर जो DS पैकेट है इसको हम यूज़ ना करें, then the exposed node which in this case is S2 वो क्या करेगा, वो retransmit करेगा after waiting for random back of time और random interval of time, and वहाँ पे probability है, chances high है कि जो data transmission है between R1 and S1 वो still continue हो. ठीक है, लेकिन उस केस में अगर उनकी ट्रांसमिशन जारी है और S2 ट्रांसमिट करेगा तो इन दोनों में डेटा में और इसके ट्रांसमिशन में एक्सपोज नोड और S1 नोड के ट्रांसमिशन में कोलिजन अकर हो सकती है. सो द माका डब्ल्यू प्रोटोकॉल जो है वो DS पैकेट को यूज़ करता है विच इज़ एन एक्स्ट्रा पैकेट इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलिजन ऑफ डेटा दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोज नोड प्रॉब्लम. इसके अलावा एक और पैकेट भी है जिसको यूज़ किया जाता है इन द माका डब्ल्यू प्रोटोकॉल, और उस पैकेट को हम कहते हैं RTS. RTS के साथ एक्स्ट्रा R हम लगा लेते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली अ रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा. राइट, अ रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा पैकेट, एंड दैट इज़ यूज्ड इन माका डब्ल्यू प्रोटोकॉल. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि किस तरह
इस RRTS पैकेट को हम यूज़ करते हैं. सो उसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. हियर वी गो. सो दिस इज़ अ सिनारियो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have two sending node S1 and S2 and two receiving node R1 and R2. S1 R1 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और S2 R2 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है. एज्यूम करें कि ट्रांसमिशन इज़ गोइंग ऑन बिटवीन S1 एंड R1. इन दोनों के दरमियान पहले से ट्रांसमिशन हो रही है. नाउ सपोज ये जो S2 है इट वांट्स टू ट्रांसमिट टू नोड R2. इन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम S2 वांट टू टॉक टू R2. लेकिन चूंकि ये जो R2 है इट इज़ एक्चुअली अ नेबर ऑफ R1. ये दोनों रिसीवर आपस में एक दूसरे के नेबर हैं. सो R2 एक्चुअली रिसीव द क्लियर टू सेंड पैकेट फ्रॉम R1. ठीक है. जब इन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन होने जा रही थी तो S1 ने इसको RTS पैकेट सेंड किया होगा, R1 ने इसको CTS पैकेट सेंड किया होगा. वो CTS पैकेट S1 को भी मिला है और R2 को भी मिला है. सो R2 एक्चुअली रिसीव द CTS पैकेट फ्रॉम R1 एंड देयरफॉर ये क्या करेगा, अपनी ट्रांसमिशन को डिफर करेगा. राइट क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी ट्रांसमिशन हो रही है R1 और S1 के दरमियान. नाउ S2 जो है it has no way to learn about the contention period during which it can content compete for the channel. So it keeps on trying. जो बैकअप काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करेगा आफ्टर ईच फेल्ड अटैम्प्ट. ये क्या करेगा, बार बार अटैम्प्ट करेगा. हे आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू. वो बार बार उसको डिफर करेगा. ये अपनी बैकअप जो विंडो है उसको इंक्रीज करेगा एंड देन इट विल रीट्राई एंड रीट्राई अगेन एंड अगेन by incrementing the backup counter. Well, here in this scenario, the main reason for this problem is actually the lack of synchronization information at the S2. उसको पता ही नहीं है, ठीक है ना, कि S1 और R1 के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है. R2 को तो पता है लेकिन S2 को वो इंफॉर्मेशन उसके साथ नहीं है. अगर है भी तो सिंक्रोनाइज नहीं है. So MacaW protocol actually overcome this problem by using the special packet RRTS. So यहाँ पे अगर आप देखें जो रिसीवर है which is R2, receiver of S2, it actually content for the channel on behalf of S2. If the node R2 had received a request to send previously for which it was not able to respond immediately because of the ongoing transmission between S1 and R1, यानी इन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन हो रही है और R2 को S2 की वजह से कोई रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट मिल गया, लेकिन उस टाइम पे उसने उसको डिफर कर दिया बिकॉज इन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन हो रही थी. लेकिन अब ये क्या करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ S2 इट विल यूज द RRTS पैकेट. राइट. सो पहले तो R2 ने वेट किया था फॉर द नेक्स्ट कंटेंशन पीरियड टू ट्रांसमिट द RRTS पैकेट. ओके, जो इसके नेबरहुड में जो नोड्स है विच इन दिस केस इज R1 एंड S2, they are actually made to wait for two successive slot for RTS and clear to send exchanges to take place. So the source node S2 जैसे ही उसको RRTS पैकेट मिल जाता है फ्रॉम द R2, ये क्या करेगा, इट विल ट्रांसमिट द रेगुलर RTS पैकेट टू नोड R2. दोबारा रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट सेंड करेगा. तो द नॉर्मल पैकेट एक्सचेंज इज लाइक RTS फ्रॉम S2 to R2 and then CTS from R2 to S2
and then data from S2 to R2, and then acknowledgement from R2 toward the S2. So that is the normal sequence. अगर इसकी आपको समझ नहीं आई, so here we have another exemplary scenario जहाँ से आप इस MacaW प्रोटोकॉल को समझ सकते हैं. Okay, so what you see here is that we have a sender and we have a receiver, and also we have the neighbors, and one is a neighbor of S and two is a neighbor of R. एक्सपोज नोड प्रॉब्लम यहाँ पे अगर होता है नॉर्मली, और जो हिडन नोड प्रॉब्लम है वो N2 पे अगर होता है, जिस तरह हमने माका प्रोटोकॉल में देखा था. सो इन दिस फिगर S इज एक्चुअली द सोर्स नोड while R denotes the receiver node, और जो N1 और N2 है they are actually the neighbor node. ओके, अब सेंडर क्या करने जा रहा है? सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट विद R. तो डेटा को सेंड करने से पहले सबसे पहले काम क्या होना चाहिए? रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट. ठीक है. So when the RTS is transmitted by the node S, it is actually heard not only by the receiver but also by the neighbor N1. अब जैसे ही N1 को ये RTS पैकेट मिलेगा, ये क्या करेगा? अपनी ट्रांसमिशन को डिफर करेगा. ये अपनी ट्रांसमिशन S को नहीं कर सकता या किसी और नोड को नहीं कर सकता. कब तक? जब तक नोड S को क्लियर टू सेंड का सिग्नल नहीं मिल जाता. ठीक है. सिमिलरली जो CTS पैकेट है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें रेडी टू सेंड टूवर्ड द रिसीवर, रिसीवर को RTS मिला तो वो क्या करेगा? क्लियर टू सेंड पैकेट सेंड करेगा टूवर्ड द सेंडर. लेकिन ये जो क्लियर टू सेंड पैकेट ट्रांसमिटेड बाय R है, ये सेंडर को तो रिसीव होगा, इट विल हेयर्ड बाय द सेंडर बट आल्सो बाय द नेबर विच इज N2. सो जैसे ही ये CTS पैकेट N2 को मिलेगा, इट विल आल्सो डिफर इट्स ट्रांसमिशन. कब तक? until the data packet is arrived या received by the receiver R. So on receiving this CTS packet, जैसे ही सेंडर को CTS पैकेट R की तरफ से मिला, ये क्या करेगा? डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेगा. एक्चुअली इट विल ट्रांसमिट द स्पेशल सिग्नल दैट इज कॉल्ड द DS, जो कि अभी हमने पढ़ा. इस DS पैकेट में एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द पैकेट ट्रांसमिशन है, इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल डेटा नहीं है, डेटा अबाउट डेटा है. सो आफ्टर हियरिंग द DS पैकेट एट नोड N1, वो क्या करेगा? बेक ऑफ लेगा. बेक ऑफ जो काउंटर वेरिएबल है, कब तक? उसकी वैल्यू ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. जब तक ये डेटा ट्रांसमिशन पैकेट, जो डेटा पैकेट है वो ट्रांसमिट नहीं हो जाता. एंड आफ्टर रिसीविंग द DS पैकेट एंड आफ्टर रिसीविंग द डेटा एट द रिसीवर, एंड रिसीवर नोड क्या करेगा? वो क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा डेटा को बाय सेंडिंग द अनदर स्पेशल पैकेट दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट. सो एक्नॉलेजमेंट S को भी रिसीव होगी और एक्नॉलेजमेंट N2 को भी रिसीव हो जाएगी. सो दैट इज अ वे कि जो नेबरहुड है उसको पता चल जाएगा कि जो डेटा ट्रांसफर था बिटवीन S एंड R, दैट इज कंप्लीटेड. So by using special packets that is the DS and acknowledgement in the MacaW protocol, we can actually solve the problems that occur in the previous Maca protocols. To summarize, जो MacaW protocol है, that has been designed based on 4 observation. यानी उनको बनाने के goals जो थे वो उस टाइम पे वो क्या थे? So the first observation is that relevant congestion occur at the receiver node and not at the sender. This realization make CSMA protocol unsuitable for mobile ad hoc network, and therefore the request to send, clear to send, and then data exchange mechanism of Maca become necessary, or MacaW. So MacaW further improved the request to send, clear to send, and data mechanism by adding some extra packet. Now the mechanism is like this.
we have the request to send, then we have the clear to send, then we have the DS packet, then we have the data packet, and then we have the acknowledgement, right? So इसकी वजह से अगर आप देखें तो कंजेशन अकर हो रही है, बट द कंजेशन अकर एट मोस्टली एट द रिसीवर नोड. सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है, दैट कंजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द location of the receiver. Therefore, instead of characterizing bakeoff by a single bakeoff parameter, separate bakeoff parameter have been introduced for each flow in MacaW protocol. This is something technical, but इसकी details में हम नहीं जा रहे हैं. A third observation is that learning about congestion at various nodes must be a collective effort or enterprise. So therefore, the notion for copying bakeoff values from overheard packets by the neighbor has been introduced in the Maca. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए collective efforts हैं. DS पैकेट है, नेबर्स को भी मिल रहे हैं. एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स है, नेबर्स को भी मिल रहे हैं. सो इट इज़ एक्चुअली टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव इंटरप्राइज बिटवीन द नोड्स, नॉट ओनली बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, बट आल्सो among the neighbor nodes. And the final observation is that in order that node content effectively for the channel, the synchronization information need to be propagated to the concerned nodes at appropriate time, and this is done in MacaW through the DS and RRTS packets. Because of the various changes described above that we discussed now, the performance of MacaW is significantly improved if we compare it with its cousin protocol, that is Maca. So this was about MacaW protocol, and now we are moving toward our third make clear protocol for mobile ad hoc network, and the name of the third protocol is BTMA. BTMA stand for busy tone multiple access protocol. This is one of the earliest protocol proposed for overcoming the hidden terminal problem faced in wireless communication. इसका जो basic mechanism है, that is focus on the splitting of the transmission channel into two sub channels. माका एंड MacaW में एक चैनल है, वही चैनल हम कंट्रोल मैसेजेस के लिए भी यूज़ करते हैं एंड आल्सो यूज़ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द एक्चुअल डेटा. जबकि इस BTMA प्रोटोकॉल में you have a separate data channel and a separate control channel. जो डेटा चैनल है उसको हम explicitly exclusively यूज़ करते हैं for transmission of data packets. While जो आपके पास कंट्रोल चैनल है इसको हम explicitly and dedicatedly यूज़ करते हैं for transmitting busy tone signal या control information, for the exchange of control information. Okay, so in BTMA protocol, when a node is ready to transmit data, transmission से पहले सबसे पहला काम ये क्या करेगा, it need to sense the channel to check whether the busy tone is active. busy tone active होने का मतलब है कि क्या कोई और busy tone के एक्टिव होने का मतलब है कि कोई और इस वक्त चैनल को यूज़ कर रहा है, किसी और नोड्स के दरमियान ट्रांसमिशन हो रही है. और अगर busy tone एक्टिव नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इट टर्न्स ऑन द busy tone सिग्नल. busy tone सिग्नल को ये टर्न करेगा और अपनी ट्रांसमिशन को, डेटा ट्रांसमिशन को ये स्टार्ट करेगा. लेकिन अगर busy tone एक्टिव है तो उस केस में ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, रीस्केड्यूल करेगा पैकेट ट्रांसमिशन को आफ्टर सम टाइम
या सम डिले, अपने ट्रांसमिशन को डिले करेगा रैंडमली, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर बिजी टोन है तो पैकेट को ट्रांसमिट ना करो, रिस्केजुअल करो, रैंडमली रिस्केजुअलिंग डिले को यूज़ करते हुए। और अगर बिजी टोन एक्टिव नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, सो इसका मतलब है दिस इज़ योर टर्न, यू कैन ट्रांसमिट द डेटा, यू कैन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। अब इस टाइम पे अगर कोई दूसरा नोड जिसने कैरियर को सेंस किया ऑन द इनकमिंग डेटा चैनल, वो क्या करेंगे, दे विल आल्सो ट्रांसमिट द बिजी टोन सिग्नल ऑन द कंट्रोल चैनल, ठीक है। यानी अगर रिसीवर है फॉर एग्जांपल, उसको डेटा मिल रहा है ऑन द डेटा चैनल, यानी कोई और उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो कम्युनिकेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि चैनल इज़ बिजी। अब उसने क्या करना है, एक इंडिकेशन देनी है दूसरे नोड्स को बाय यूजिंग द बिजी टोन सिग्नल ऑन द कंट्रोल चैनल कि हे, आई एम रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ नोड, सो यू आर नॉट अलाउड टू सेंड डेटा टू मी और टू एनी अदर नोड। आप सेंड करेंगे तो कोलिजन अकर होगी। तो रिसीवर जो है वो खुद भी इन्फॉर्म कर सकता है अबाउट द डेटा रिसेप्शन by using the busy tone signal on the control channel. So when BTMA protocol में when a node is transmitting, no other node normally in the two hop neighborhood of the transmitting node is permitted, is allowed to transmit simultaneously. The node has to wait, ठीक है। ये जो BTMA प्रोटोकॉल है इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज हम दूसरे नेबर्सहुड को ट्रांसमिट होने नहीं दे रहे हैं। ट्रांसमिशन नहीं होगी तो कोलिजन नहीं होगी, सो चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन इसमें जो बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन है दैट इज़ वेरी पुअर। सिस्टम की परफॉर्मेंस थ्रूपुट की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ वेरी पुअर। Here we have a graphical representation of the BTMA protocol. This is actually a worst case scenario जहाँ पे नोड की जो डेंसिटी है we suppose that it is very high. जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं it actually represent the coverage area. तो जो डॉटेड सर्कल है this one, it actually shows the region in which nodes are locked from simultaneous transmitting. इस सर्कल के अंदर जितने भी नेबर्सहुड के नोड हैं वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते जब तक इन दोनों नोड्स के दरमियान ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। इस केस में दिस इज वी हैव टू नोड्स N1 and N2 and they are actually transmitting data to one another. तो वो क्या करेंगे, जैसे ही उनके दरमियान डेटा ट्रांसमिशन होगी तो बिजी टोन सिग्नल्स जो है वो सेंड करेंगे ओवर द कंट्रोल चैनल, और वो जो बिजी टोन सिग्नल है दैट विल बी रिसीव बाय द नेबरहुड नोड्स एंड देन दे विल डिफर देयर ट्रांसमिशन, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ N1 एंड दिस इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन, दिस सर्कल इज द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ N2 एंड दिस इज द रीजन जहाँ पे, तो अगर आप देखें ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर के जो नोड्स हैं उनको भी ट्रांसमिट होने से रोक रहे हैं ताकि कोलिजन जो है वो अकर ना हो। मूविंग टू आवर फोर्थ प्रोटोकॉल, there is a dual busy tone multi-access protocol. So what you see is BTMA protocol but with a D in front of it. So it means that it is basically an extension of the previous protocol and there is a BTMA protocol. It is actually based on the BTMA protocol or BTMA scheme. Like the BTMA protocol, हम यहाँ पे जो ट्रांसमिशन चैनल हैं उसको डिवाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स। एक को हम कहेंगे डेटा चैनल, एक को हम कहेंगे कंट्रोल चैनल। डेटा चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा,
control channel for transmission of control messages, information, for example, busy tone or other control packets. So just like in the previous case, जो डेटा चैनल है उसको हम यूज़ करेंगे डेटा पैकेट ट्रांसमिशन के लिए, और जो कंट्रोल चैनल है उसको हम यूज़ करेंगे कंट्रोल पैकेट ट्रांसमिशंस के लिए. कंट्रोल पैकेट ट्रांसमिशन में हमारे पास RTS और CTS का मैकेनिज्म भी है. सो dual BTMA uses two busy tones on the control channel. वहाँ पे एक टोन था, यहाँ पे दो बिजी टोन हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डुअल. एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं T स्मॉल t और दूसरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से. जो BT स्मॉल t बिजी टोन है, as the name indicate, T is for transmission. So it is used by the node to indicate that it is transmitting on the data channel. While जो R है BTR, ये भी एक बिजी टोन है, लेकिन इसको हम तब यूज़ करते हैं या एक नोड इसको तब यूज़ करता है when it is receiving data on the data channel. So in the previous protocol, अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं या अगर आप डेटा रिसीव कर रहे हैं, यू हैव टू एक्टिव द बिजी टोन. लेकिन यहाँ पे जो बिजी टोन है उसको हमने फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है. अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑन द डेटा चैनल, सो BTT स्मॉल t, और अगर आप रिसीव कर रहे हैं सो BT विथ स्मॉल r जो है बिजी टोन, उसको आप जो है वो टर्न ऑन करेंगे. और ये एक इंडिकेशन होगी कि इस वक्त ये नोड जो है वो डेटा को रिसीव कर रहा है ऑन द डेटा चैनल. एक्चुअली ये जो बिजी टोन्स हैं ना, ये जो टोन सिग्नल्स हैं, ये जो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ट्रांसमिशन हो रही है, दे आर एक्चुअली साइन वेव्स, एंड उसकी जो है वो वेल सेपरेटेड फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं. सो देयर इज समथिंग रिलेटेड विद द वायरलेस कम्युनिकेशन. So our focus is कि when a node is ready to transmit a data packet, तो like the previous case, सबसे पहले काम ये नोड क्या करेगा? It need to sense the channel to determine कि क्या कोई और तो इस वक्त ट्रांसमिशन नहीं कर रहा या कोई और तो इस वक्त डेटा को रिसीव नहीं कर रहा. तो वो क्या करेगा? BTR सिग्नल को जो है वो चेक करेगा कि क्या BTR सिग्नल एक्टिव तो नहीं है या टोन एक्टिव तो नहीं है. अगर BTR एक्टिव है, सो इट इज़ एन इंडिकेशन कि नेबरहुड में कोई नोड करंटली डेटा को या डेटा पैकेट्स को रिसीव कर रहा है. ऑन द अदर साइड, जो रेडी नोड है, रेडी फॉर ट्रांसमिशन, उसने सेंस किया चैनल को, उसे पता चला कि कोई BTR सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, BTR इज़ नॉट एक्टिव. तो ये क्या करेगा? इट विल ट्रांसमिट द डेटा, नो, द RTS पैकेट ऑन द कंट्रोल चैनल, एंड द RTS इज़ फॉर रिक्वेस्ट टू सेंड. यानी RTS सेंड करने से पहले भी हम चैनल को सेंस कर रहे हैं. माका W में RTS को हम यूज़ करते हैं टू सेंस द चैनल. यहाँ पे हम BTR को के प्रेजेंस को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एन इंडिकेशन कि कोई और इस वक्त तो चैनल को यूज़ नहीं कर रहा. सो अगर BTR प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि नेबरहुड में कोई नोड है and that is actually receiving data packets. So अगर BTR सिग्नल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, so this is an indication कि अभी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को. ओके, सो अगर BTR प्रेजेंट नहीं है तो RTS पैकेट सेंड होगा ऑन द कंट्रोल चैनल. अब जैसे ही RTS पैकेट रिसीव होता है, वो नोट क्या करेगा? वो अभी फ़िलहाल क्लियर टू सेंड पैकेट सेंड नहीं करेगा. फर्स्ट ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि BT विथ स्मॉल t टोन
तो एक्टिव नहीं है, यानी मेरे नेबरहुड में कोई और इस वक्त ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा। अगर रिसीवर के नेबरहुड में कोई एक्टिव बीटीटी टोन है, कोई उसके नेबरहुड में इस वक्त कोई और डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में ये पैकेट्स रिसीव नहीं कर सकता एट द मोमेंट, तो ये क्लियर टू सेंड नहीं सेंड करेगा। लेकिन अगर रिसीवर के नेबरहुड में इस वक्त कोई भी नोड ट्रांसमिट नहीं कर रहा, यानी इन अदर वर्ड कोई बीटी स्मॉल टी सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, ये क्या करेगा? इट विल रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग अ स्पेशल पैकेट CTS, और वो पैकेट रिटर्न करेगा टुवर्ड्स द सेंडर, और साथ में इट विल टर्न ऑन द BTT सिग्नल, हे आई एम इन रिसीविंग मोड। तो ये अपने नेबरहुड्स को बता देता है कि इस वक्त मैं डेटा को रिसीव करने के मोड में हूँ, तो आप अपनी ट्रांसमिशन को डिफर करें। So it actually inform other nodes in its neighbor that it is receiving data from the sender. Now RTS clear to send successful हो गई। अब जैसे ही सेंडर को CTS पैकेट मिल जाए फ्रॉम द रिसीवर, ये क्या करेगा? इट विल टर्न ऑन द BTT सिग्नल, यानी अब ये अपने नेबरहुड में जो नोड्स हैं उनको इन्फॉर्म करेगा कि नाउ आई एम ट्रांसमिटिंग सम डेटा, तो आप लोग अपनी ट्रांसमिशन को डिफर करें। और CTS मिलने के बाद एक काम तो ये करेगा कि BTT सिग्नल को ऑन कर देगा, और दूसरा काम क्या करेगा? डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए, जो सेंडर नोड है ये क्या करेगा? BTT सिग्नल को जो इसने पहले ऑन किया था उसको ये क्या कर देगा? टर्न ऑफ कर देगा। और जो रिसीवर नोड है, आफ्टर रिसीविंग ऑल द डेटा पैकेट, वो क्या करेगा? BTR सिग्नल को ऑफ करेगा जो कि पहले उसने ऑन किया था। और इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे फिगर में डिपिक्ट भी किया गया है। सो वी हैव अ सेंडर एंड वी हैव अ रिसीवर एंड वी हैव अ टाइम विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि वेयर इज द यस, फर्स्ट लेट अस सी के जो हमारे पास चैनल है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। द पार्ट्स आर कंट्रोल चैनल एंड डेटा चैनल। सिमिलरली रिसीवर साइड पे भी वी हैव अ कंट्रोल चैनल एंड वी हैव अ डेटा चैनल। तो सबसे पहले काम RTS, चैनल अवेलेबल है, कोई और इस वक्त ट्रांसमिट नहीं कर रहा, कोई और उस वक्त पे रिसीव नहीं कर रहा, चैनल अवेलेबल है, तो सेंडर कंट्रोल चैनल को यूज़ करेगा। अ स्पेशल पैकेट RTS रिक्वेस्ट टू सेंड को वो यूज़ करेगा, उसको सेंड करेगा टूवर्ड द रिसीवर। रिसीवर को RTS मिल गया, कोई और इस वक्त पे रिसीव नहीं कर रहा, ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? क्लियर टू सेंड पैकेट सेंड करेगा टूवर्ड द सेंडर। अब देखें ये दोनों पैकेट कहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं? ओवर द कंट्रोल चैनल। जैसे ही सेंडर को CTS सिग्नल मिल जाए, डेटा को ट्रांसमिट तो वो करेगा ही, लेकिन साथ में एक और काम भी करेगा। वो काम क्या है? BTT सिग्नल, बिजी टोन। हे इस वक्त मेरे नेबरहुड में जितने नोड्स हैं वो ट्रांसमिट को डेटा ट्रांसमिशन को डिफर करें, क्योंकि आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट सम डेटा। और डेटा ट्रांसमिशन कहाँ पे होगी? डेटा चैनल पे। So here we have the data. Data is sent from sender toward the receiver over the data channel. जैसे ही डेटा ट्रांसमिशन जैसे ही डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए, देन दे हैव टू इन्फॉर्म द नेबरहुड के नाउ द ट्रांसमिशन इज कंप्लीटेड। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि सेंडर तो BTT को यूज़ करेगा, लेकिन रिसीवर जैसे ही CTS को सेंड करेगा तो वो BTR को जो है बिजी टोन सिग्नल को वो ऑन कर देगा। Okay, when compared to the simple RTS CTS based MAC schemes like MACA and MACA-W, इस प्रोटोकॉल में नेटवर्क की यूटिलाइजेशन हमारे पास बेटर है।
एंड दिस इज़ पॉसिबल, द बेटर यूटिलाइजेशन इज़ बिकॉज जो अदर स्कीम है एक्चुअली दे ब्लॉक both the forward and reverse transmission on the data channel when they reserve the channel through their RTS or CTS packets. But यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में when the node is transmitting or receiving, only जो reverse और forward channels हैं रिस्पेक्टिवली सिर्फ उनको हम ब्लॉक करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन कंपैरेटिवली एफिशिएंट है, एंड इट इज़, आप कह सकते हैं इट इज़ ट्वाइस इज दैट ऑफ द अदर प्रोटोकॉल्स लाइक माका और माका डब्ल्यू. Okay, our next protocol for the MAC layer is called BTMA, but this time reverse receiver initiated protocol. Right? जो हमने अभी पढ़ा that was sender initiated. Now we have a receiver initiated protocol. As the name indicate, BTMA. So it is actually another protocol which is based on the BTMA. यहाँ पे जो बिजी टोन है, जो बिजी टोन मल्टी एक्सिस प्रोटोकॉल है, इसमें भी जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको हम 2 चैनल्स में डिवाइड करेंगे. उसी तरह एक चैनल को हम डेटा कहेंगे, दूसरे को हम कंट्रोल चैनल कहेंगे. डेटा चैनल को हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट, और कंट्रोल चैनल को हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द कंट्रोल पैकेट्स. जिस तरह प्रीवियस में कंट्रोल चैनल को यूज़ किया गया था फॉर ट्रांसमिटिंग द बिजी टोन सिग्नल, इसी तरह इसमें भी बिजी टोन सिग्नल्स के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. इस प्रोटोकॉल में एक नोड डेटा को ऑन द डेटा चैनल तब ट्रांसमिट कर सकता है इफ़ इट फाइंड्स द बिजी टोन टू बी एब्सेंट ऑन द कंट्रोल चैनल. यानी अगर कंट्रोल चैनल पे कोई बिजी टोन नहीं है, इट इज़ एन इंडिकेशन कि इस टाइम पे कोई भी नोड ट्रांसमिशन नहीं कर रहा. सो यू कैन यूज़ द डेटा चैनल. ठीक है. सो यहाँ पे एक और चीज़ है, एंड दैट इज़ द डेटा पैकेट रिलेटेड विद द डेटा पैकेट. कि जो डेटा पैकेट है इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं प्रीएम्बल और एक को हम कहते हैं एक्चुअल डेटा पैकेट. जो प्रीएम्बल है इट एक्चुअली कैरीज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटेंडेड डेस्टिनेशन नोड. Like extra information is not part of the data, it is actually an identification of the intended receiver of the data. दोनों जो चैनल हैं, क्योंकि ये स्लॉटेड स्कीम्स हैं BTMA वाले, तो वहाँ पे जो कंट्रोल चैनल है एंड डेटा चैनल है दे आर स्लॉटेड, विच मीन कि ईच जो आपके पास स्लॉट है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्रीएम्बल. सो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन है इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. फर्स्ट, जो आपके पास प्रीएम्बल है इट नीड टू बी ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर, बिकॉज आपका जो डेटा पैकेट है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रीएम्बल में और एक्चुअल डेटा में. सो फर्स्ट यू नीड टू ट्रांसमिट द प्रीएम्बल. जैसे ही रिसीवर नोड को प्रीएम्बल मिल जाए वो इसकी एक्नॉलेजमेंट करेगा, हे आई हैव रिसीव द प्रीएम्बल. और ये इंडिकेशन ऑफ द रिसेप्ट ऑफ द प्रीएम्बल किस तरह होगी? बाय ट्रांसमिटिंग द बिजी टोन सिग्नल. किस चैनल पे होगी? कंट्रोल चैनल पे. ठीक है. उसके बाद जो है एक्चुअल डेटा पैकेट की ट्रांसमिशन होगी ऑन द डेटा चैनल. सो a sender node that need to transmit a data packet, सबसे पहले वो क्या करेगा? It has to wait for a free slot, क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल किसके हाथ में है? रिसीवर के हाथ में है. ठीक है. तो सेंडर ट्रांसमिट करने जा रहा है, बट ट्रांसमिशन से पहले द सेंडर नीड टू वेट फॉर अ फ्री स्लॉट. फ्री स्लॉट कौन सा स्लॉट होगा? जिसमें हमारे पास बिजी टोन नहीं होगा. बिजी टोन अगर नहीं है ओवर द कंट्रोल चैनल तो इसका मतलब है कि दिस स्लॉट इज एम्प्टी, यू कैन यूज दिस स्लॉट. जैसे ही सेंडर को फ्री स्लॉट मिल जाए,
अब ये क्या करेगा, डेटा पैकेट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, इट विल सेंड द प्रीएम्बल पैकेट। और ये जो प्रीएम्बल पैकेट है इसको हम कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, डेटा चैनल के ऊपर। रिमेंबर यहाँ पे हमने देखा कि डेटा पैकेट को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, प्रीएम्बल और एक्चुअल डेटा पैकेट्स, और दोनों को हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर द डेटा चैनल। सो सबसे पहले रिसीवर अगर कोई डेटा है, कोई डेटा पैकेट है ट्रांसमिट करने के लिए, सबसे पहले वो वेट करेगा फॉर अ फ्री स्लॉट। जैसे ही उसको फ्री स्लॉट मिल जाए, और फ्री स्लॉट हम किसे कहते हैं, उस स्लॉट को जहाँ पे बिजी टोन कंट्रोल चैनल पे प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट हो। सो जैसे ही उसको ये स्लॉट मिल जाए और इट फाइंड सच अ स्लॉट, इट विल ट्रांसमिट द प्रीएम्बल, कहाँ पे, ऑन द डेटा चैनल। अब ऑन द रिसीवर साइड जो आपका डेस्टिनेशन नोड है, अगर इसको प्रीएम्बल पैकेट करेक्टली मिल जाए, करेक्टली मीन विदाउट एनी एरर, तो ये क्या करेगा, इट विल ट्रांसमिट द बिजी टोन एज वेल, कहाँ पे, ऑन द कंट्रोल चैनल। और कब तक ये बिजी टोन कंटिन्यू रहेगा, एज लॉन्ग एज इट इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम द सेंडर, जब तक डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाती, कोई और नोड अलाउ नहीं है टू यूज द चैनल। लेकिन एक सिचुएशन है कि अगर आपके पास जो प्रीएम्बल है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रीएम्बल, अगर वो आपके पास फेल हो जाए, तो जो रिसीवर नोड है, इट विल नॉट बी एबल टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द प्रीएम्बल बिकॉज इट इज लॉस्ट, वो रिसीवर को नहीं मिला। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बिजी टोन को जनरेट नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं करेगा, और सेंडर नोड जो है वो वेट करेगा फॉर द नेक्स्ट स्लॉट इन ऑर्डर टू ट्राई अगेन। यानी अगर एक दफ़ा आपसे जो है वो फ्री स्लॉट मिस कर जाए बिकॉज ऑफ द प्रीएम्बल ट्रांसमिशन लॉस, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू वेट फॉर अनदर फ्री स्लॉट इन ऑर्डर टू रीट्रांसमिट द प्रीएम्बल। इस प्रोटोकॉल की जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। यहाँ पे जो बिजी टोन है इसके एक्चुअली 2 पर्पसेस हैं। पहला पर्पस, इट एक्चुअली एक्नॉलेज द सेंडर अबाउट द सक्सेसफुल रिसेप्शन ऑफ द प्रीएम्बल। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, रिसीवर को प्रीएम्बल मिल गया, वो क्या करेगा, बिजी टोन को ऑन कर देगा। सेकेंड पर्पस इज के इट एक्चुअली इन्फॉर्म द नेबरहुड, द नियर बाय हिडन नोड्स अबाउट द ऑन गोइंग ट्रांसमिशन, ताकि वो भी जो है वो अपनी ट्रांसमिशन को डिले करे, सेम टाइम पे ट्रांसमिट ना करे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस protocol. We have a sender, we have a receiver, we have control channel and we have data channel. कंट्रोल चैनल को हम उसी तरह बिजी टोन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे डेटा चैनल को हम 2 पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्रीएम्बल एंड फॉर एक्चुअल डेटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंडर प्रीएम्बल को सेंड करता है टुवर्ड द रिसीवर। जैसे ही रिसीवर को प्रीएम्बल सही सलामत ठीक ठाक मिल जाए विदाउट एनी एरर, वो क्या करेगा, बिजी टोन सिग्नल को जनरेट करेगा। ठीक है, और ये बिजी टोन सिग्नल जो है दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर द नेबरहुड नोड कि अपनी ट्रांसमिशन को डिफर करे, एंड आल्सो इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर द सेंडर कि अभी आप जो है वो डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजी टोन एक्टिवेट होने के बाद डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम सेंडर टुवर्ड्स द रिसीवर, और जैसे ही ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए यू कैन रिलीज द बिजी टोन फ्रॉम द कंट्रोल चैनल। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है इसके 2 वर्जन्स या 2 फ्लेवर्स आप कह सकते हैं। एक हमारे पास बेसिक है और एक हमारे पास कंट्रोल्ड है। जो बेसिक है, द बेसिक पैकेट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, वो दोनों में सेम है। फॉर एग्जांपल, in the basic protocol, nodes do not have backlog buffer to store data packet. This is simple. अगर बफर है तो बफर का क्या रोल है,
डेटा पैकेट्स को स्टोर करना। तो जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसमें बफर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हेंस जो पैकेट्स हैं दैट सफर कोलिजन्स, उसको आप रिट्रांसमिट नहीं कर सकते। या अगर नेटवर्क पे कोई लोड इंक्रीज होता है तो पैकेट को आप क्यू में नहीं रख सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द बफर। बफर इज एक्चुअली अ मेमोरी जो कि नोड्स पे आप क्रिएट करते हैं। सो ये जो बेसिक प्रोटोकॉल है इसको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास नेटवर्क लोड बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है, या आपके पास पैकेट कोलिजन रेशो वो कम हो। लेकिन जैसे ही अगर नेटवर्क लोड बढ़ता है सो दिस प्रोटोकॉल बिकम अनस्टेबल। ऑन द अदर साइड जो आपके पास कंट्रोल्ड प्रोटोकॉल है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। This is actually same like the basic protocol. The only difference is the availability of the buffer at the nodes. तो यहाँ पे अगर कोई पैकेट कोलिजन उनमें होती है या नेटवर्क लोड बढ़ता है, कुछ पैकेट्स को कुछ टाइम के लिए आपने जो है वो क्यू में रखना है एट द नोड्स, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बफर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास कंट्रोल प्रोटोकॉल में है, और उसकी वजह से आप जो बेसिक प्रोटोकॉल के प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द RAI BTMA protocol. Now we are going to move to other protocols, but before going to discuss those protocols, let us take a short break. मिलते हैं in the second half. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।